Hello friends and welcome back to Study IQ. This is your electromagnetic theory video series aimed for electronics students appearing in GATE as well as Indian Engineering Services examination. However, electrical students can also watch this and so can those people who are appearing in civil services. Right. This is your class number 6. So till last class, we had covered the cylindrical coordinate system. In the last class, I had shown you that what is cylindrical coordinate system, what are its properties, what are unit vectors, how to convert it from Cartesian to cylindrical or from cylindrical to Cartesian. I have shown you conversion for 3 points. First was the location of a particular point. The second was for the unit vectors, that is AX, AY, AZ, and A rho, A phi, AZ. And lastly, we had seen conversion of a vector whose components are given. Okay, so we had seen the matrix formula as well. Now let us take the discussion further and let us study spherical coordinates. This is the third kind of coordinate system that you have to study. So in this coordinate system, what are the coordinates that we use? We use r, theta and phi. First of all, you write down. You give the heading spherical coordinates r, theta, phi. Okay. Then you write down that spherical coordinate system is used. Spherical coordinate system is used where there is spherical symmetry. For example, point charge. Okay. For example, point charge. Here we have 3 variables r, theta and phi. Now let us understand what are these r, theta and phi. First of all, let us draw again the same Cartesian coordinate system because that is the easiest thing for you to understand. Okay. You will have having a y-axis, you will have an x-axis, then you will be having a z-axis. Okay. Now, if you look at r, theta and phi, there is a term phi. This phi is same as phi in cylindrical coordinates. Okay. But let us look at what is r, what is theta and what is phi in spherical coordinates so that you can get an idea. Assume that there is a particular point P which has to be expressed in r, theta and phi. So what you do is that you join origin with this particular point P. This distance is known as r. Okay. So you first draw this diagram. You draw Cartesian coordinates, mark a point P, then mark r as radius. Thereafter you write that r denotes the distance of the point P from origin. R denotes the distance of the point P from origin O. Okay. And AR, that is unit vector AR, shall be pointing in the direction O to P. Okay. Thereafter you write down that if we draw a sphere of radius r
if we draw a sphere of radius r, if we draw a sphere मतलब क्या होता है? स्फीयर का मतलब होता है जैसे आपका बॉल है, इट इज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक। इफ वी ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, then we can understand theta and phi. Then we can understand theta and phi. Full stop. फिर लिखिए such a sphere will be having arc projection. Such a sphere will be having arc projection, arc projection on zx, xy, yz planes. Such a sphere will be having arc projection on zx, xy and yz planes. अभी देखिए आपको मतलब इससे क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक पूरा स्फेयर अगर बना दें तो उसका डायग्राम ऐसा होता, ठीक। लेकिन मैं पूरा स्फेयर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं दिखाना चाहता, मैं चाहता हूं कि आपको स्फेयर का सिर्फ एक पार्ट दिखे, ठीक है। वो पार्ट दिखे जो कि आपका पॉइंट P के क्वाड्रेंट में लाई करता है। मैं पूरा स्फेयर इसलिए नहीं ड्रॉ करना चाहता क्योंकि उससे आपको इमेजिन करने में दिक्कत होगी, लेकिन एक्चुअली में पूरा स्फेयर ही ड्रॉ करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ स्फेयर का एक पार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग चाहिए तो अपने कॉपी में पहले एक बार तो पूरा स्फेयर को ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैंने ड्रॉ किया है अभी। उसके बाद लिखिए कि द आर्क प्रोजेक्शंस विल बी एज फॉलोज। The arc projections will be as follows. आइए मैं आपको फ्रेश ड्रॉ करता हूं आर्क प्रोजेक्शन इसके। ये आपका स्फेयर का बस एक पार्ट है, ये जो है आपके स्फेयर का बस एक पार्ट है। आप बेसिकली ये सोचिए कि आपका जो स्फेयर है उसका जो सेंटर है O, उससे 3 एक्सेस बाहर की ओर निकल रहे हैं, x, y एंड z। जो पॉइंट P है वो आपके स्फेयर के सरफेस के ऊपर है। तो जो ये zx प्लेन है आपका, ये स्फेयर को काटेगा। तो जब काटेगा तो जो पार्ट बचेगा वो ये वाला जो ब्लू पार्ट है आपका। यही मैं आपसे कह रहा था कि द प्रोजेक्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ आर्क या सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक। सिमिलरली XY प्लेन पे भी जो प्रोजेक्शन है ये ब्लू वाला पार्ट, दिस इज ऑल्सो अ सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक। सेमी सर्कल तो क्या ही है, इट इज ओनली 90 डिग्री सर्कल, एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। सिमिलरली YZ प्लेन पे जो प्रोजेक्शन होगा इस स्फेयर का, दैट इज ऑल्सो अ आर्क, 90 डिग्री वाला आर्क, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री है,
ठीक, अब देखिए आपका जो पॉइंट P है उसको हमने सरफेस पे मार्क किया हुआ है, ठीक। तो O से P जो लाइन जा रही है दैट डिनोट्स योर R, ठीक। अब ये जो O से P की जो लाइन है इसका एंगल अलोंग विद Z एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज योर थीटा एंड इट इज मेजर्ड एज अवे फ्रॉम Z एक्सिस, ठीक है। और जहां तक सवाल रहा आपके फाई का, तो फाई तो आप ऑलरेडी जानते हैं फ्रॉम योर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। आपका जो पॉइंट P है उसको जोड़ दीजिए आप पॉइंट O से इसके प्रोजेक्शन को, और एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज योर फाई एंगल, दैट इज कॉल्ड एज योर फाई एंगल, ठीक है। दिस इज व्हाट योर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर ऑल अबाउट। इस डायग्राम को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए और इमेजिन करके देखिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। मैं आपको एक दो और डायग्राम बनवाऊंगा इसमें भी ताकि आपको क्लियर हो सके ये चीज, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लीजिए और अब मैं आपको इसके यूनिट वेक्टर्स को मार्क कर देता हूं। यूनिट वेक्टर्स किधर किधर होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला तो आपका जो AR है ये आपका बाहर की ओर पॉइंट करेगा, ठीक। फिर जो आपका A थीटा है वो इसी सरफेस पे नीचे की ओर ऐसे पॉइंट करेगा, और जो आपका A फाई है, जो आपका A फाई है वो सरफेस पे टेंजेंशियली पॉइंट करेगा लाइक दिस। इसको और बेटर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप A फाई को। These will be the directions of your unit vectors. These will be the directions of your unit vectors. ठीक है, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी आपको और डायग्राम ड्रॉ कराता हूं मैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चीज, डोंट वरी। एक बार में क्लियर अगर हो जाए आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं अपने डाउट्स को बचा के रखा है, छुपा के रखा है। ऐसा नहीं होता, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वाकई में टफ होता है, एक बार में समझना। आइए अब मैं आपको क्रॉस सेक्शन नहीं दिखा करके आपको पूरा एक सर्कल ही दिखाता हूँ, पूरा स्फेयर दिखाता हूँ बेसिकली। मान लीजिए कि ये है आपका पूरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का स्फेयर, ठीक है। एंड दिस इज योर ओरिजिन, इसी ओरिजिन से आपको एक्सिस बाहर की ओर निकल रहे हैं। दिस इज योर एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, ठीक। मतलब ये जो आपका प्लेन है दिस इज बेसिकली योर वाई जेड प्लेन, और एक्स एक्सिस ऐसे बाहर की ओर आपकी आंखों में तीर मार रहा है एक्स एक्सिस, ठीक। मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है जो कि आपका पॉइंट P ऑन द सरफेस, ठीक है। अब देखिए आप कैसे कैसे इसके कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड करिएगा। सबसे पहले ओरिजिन से लेकर के पॉइंट P को कनेक्ट कर दीजिए, दैट इज योर डिस्टेंस R, और इसी के अलॉन्ग हो जाएगा आपका वेक्टर AR, ओके, ठीक। उसके बाद आइए आप अपने एंगल थीटा के ऊपर। थीटा जेड एक्सिस से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए थीटा को डिफाइन करने का एक और तरीका है, ध्यान से देखिए। ये जो आपका स्फीयर है जिसको मैंने ब्लैक कलर से पेंट किया है, बनाया है, अब ये देखिए कि जो थीटा एंगल है, अगर मैं यहां पे एक कट लगा दूं और ये जो ब्लैक वाला पेन है दिस इज योर कोन, दिस विल बी योर कोन। तो ये जो कोन है इसके टॉप का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज योर थीटा एंगल। कोन में जो टॉप का एंगल है दैट इज कॉल्ड एज योर थीटा एंगल। सो आप थीटा एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट थीटा एंगल इज द, आप लोग उस डायग्राम को पहले ड्रॉ कीजिए फिर लिखिए। आप लिखिए थीटा एंगल इज डिफाइंड एज, थीटा एंगल इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ द
as angle of the imaginary cone as angle of the imaginary cone as angle of the imaginary cone whose base is a circle whose base is a circle on the surface of the sphere, on the surface of the sphere, on the surface of the sphere. ठीक है, देखिए आप मुझे आपसे कुछ और भी चीजें डिस्कस करनी है. आप फिर से थीटा को देखिए. यू लुक एट थीटा वंस अगेन. P1 और आप मान लीजिए यहां पे है आपका P2. ठीक, मैं आपको दो पॉइंट्स के बीच में कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं. सो दिस विल बी योर थीटा 1 whereas दिस विल बी योर थीटा 2. आपके सामने दो पॉइंट्स है P1 एंड P2. मैंने दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग सर्कुलर कोन बना दिया है. अब आपके सामने दो वैल्यूज है थीटा 1 एंड थीटा 2. आपको ये बताना है कि अगर थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री है तो थीटा 2 की वैल्यू 40 डिग्री होगी या फिर 20 डिग्री होगी. मतलब उससे ज्यादा है या फिर उससे कम है. ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 40 डिग्री, उससे ज्यादा है. आपको फिगर देख के ही लग जाएगा. इट हैज टू बी मोर देन 30 डिग्री और मोर देन थीटा 1. ठीक, गुड. एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ. एक और पॉइंट के ऊपर आइए. जरा थीटा का रेंज भी देखते हैं हम लोग, कहां से कहां वैरी कर सकता है थीटा. ठीक है, आप इसी फिगर को दोबारा देखिए. आप थीटा 1 का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? थीटा 1 का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री. कब? जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा आपके एक्सिस के ऊपर ही. जब आपका कोन बहुत ही पतला होगा, लेटेस्ट से इतना पतला हो जाएगा आपका कोन, उसमें 0 डिग्री पहुंच जाएगा वैल्यू थीटा का. बट व्हाट अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा? देखिए, अगर आप और एक्सपैंड करें इस रेड लाइन के बियॉन्ड, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? लेटेस्ट से 70 डिग्री. अगर आप वाई एक्सिस ही बना दे थीटा को, तो कितना हो जाएगा? इट विल बी अगेन योर 90 डिग्री. सिमिलरली जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो आप इस वाले एंगल को देखिए. दिस विल बिकम 110 डिग्री. एंड फाइनली जब आप नेगेटिव जेड एक्सिस पे कोइंसाइड करेंगे तो थीटा 1 का मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. 180 degree. That is the range of the values. That is the range of the values. आपको फिर से मैं क्लियर करता हूं इस चीज को. देखिए, कितना होगा थीटा का वैल्यू? 2 डिग्री, 3 डिग्री. मतलब थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री तक जा सकता है. ठीक, यहाँ पे कितना होगा थीटा का वैल्यू? क्योंकि आप जेड एक्सिस से ही मेजर करेंगे थीटा के वैल्यू को. लेटेस्ट से यहाँ पे हो जाएगा थीटा का वैल्यू 80 डिग्री. मतलब 90 डिग्री तक तो जाएगा. 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका? वाई एक्सिस खुद ही. तो उसके जब नीचे की ओर जब ये आएगा तो आपका जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ये? लेटेस्ट से 110 डिग्री. फाइनली जब ये ऐसा हो जाएगा तब कितना एंगल बनाएगा ये? 170 डिग्री. तो फाइनल एंगल कितना होगा? 180
80 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब कि थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 degree to 180 degree, or you can say that theta will vary from 0 to pi. Theta will vary from 0 to pi. ठीक है, आइए आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं थीटा के बारे में। आप लोगों ने बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लैटिट्यूड। दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जैसे ये आपका अर्थ अगर है तो जो इक्वेटर है उसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री का लैटिट्यूड। इंडिया जो है उसमें 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड नॉर्थ पास करता है, सबसे ऊपर हो जाता है आपका 90 डिग्री का लैटिट्यूड। ठीक है, अब देखिए कहां से निकालते हैं लैटिट्यूड के एंगल्स को, उसका रिलेशन है आपके थीटा से भी। आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, हालांकि है नहीं बट मान लीजिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पॉइंट पे कोई अगर पॉइंट है P, ठीक, उसको अगर आप जोड़ देंगे सेंटर ऑफ अर्थ के साथ, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है अल्फा वही होता है आपका लैटिट्यूड। ठीक, और ये वाला जो एंगल थीटा में आपको पढ़ा रहा हूं अभी, दैट इज बेसिकली 90 डिग्री माइनस अल्फा ओनली। यानी जो लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट है आप उसको 90 डिग्री में से घटा देंगे तो आपका जो थीटा का कॉन्सेप्ट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वो आपको मिल जाएगा। समझे? लैटिट्यूड मेजर कर रहे हैं लोग इस वाले एक्सिस के रेफरेंस में, यानी कि आपके वाई एक्सिस के रेफरेंस में। थीटा हम लोग मेजर कर रहे हैं आपके जेड एक्सिस के रेफरेंस में। 90 डिग्री होगा दोनों का सम। अब आपको क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय थीटा। ठीक है, अच्छा, जो आपका आर रेडियस होता है उसका रेंज क्या होगा? आर जो आपका रेडियस है उसका रेंज क्या होगा? फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये भी क्लियर है आपको। 0 कब होगा? जब ये पॉइंट बिल्कुल ओरिजिन पे लाई करेगा। इन्फिनिटी कब होगा? जब बहुत ही बड़ा स्फीयर बनेगा तब। ठीक है, अब आइए आपका थर्ड कोऑर्डिनेट यानी कि जो ए फाई है उसको देखते हैं। ए फाई या फिर फाई कोऑर्डिनेट। अब फाई कोऑर्डिनेट को आप ऑलरेडी जानते हैं कि फाई कोऑर्डिनेट इज सेम एज दैट इन द सिलिंड्रिकल सिस्टम। तो फाई का रेंज क्या हो जाएगा आपको? 0 से लेकर के 2 पाई तक। और फाई को कैसे मेजर करते हैं? फाई को हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप इसको यहां पे फिर से लिख लीजिए दैट फाई is measured from x-axis in counterclockwise direction. Phi is measured from x-axis in counterclockwise direction and is same as phi in cylindrical कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आइए अब मैं आपको इन तीनों का कंबाइंड डायग्राम बनवा देता हूं। ठीक है, ए आर हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस, तो आपका वाई जेड एंड दिस विल बी योर एक्स एक्सिस। उसके बाद आपका जो ए थीटा है दैट विल बी लाइक दिस। सॉरी, ए थीटा होगा यहाँ पे।
whereas your phi will be along this. ठीक है, आपका phi जो है सो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा. ठीक है, आपका थीटा इस डायरेक्शन में बढ़ेगा और आपका AR इस डायरेक्शन में बढ़ेगा. थीटा जो है आपका, उसको हमेशा आप लैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं. इसीलिए थीटा को कई जगह कहते हैं को-लैटिट्यूड एंगल ऑल्सो. को-लैटिट्यूड क्यों? क्योंकि अल्फा इज लैटिट्यूड कॉन्सेप्ट बट थीटा इज 90 डिग्री माइनस अल्फा, सो थीटा इज कॉल्ड एज योर को-लैटिट्यूड कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ योर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. आइए एक दो पॉइंट आपको और बताता हूं मैं. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन स्फेरिकल सिस्टम. सेम कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है A विच इज AR along AR प्लस A थीटा along A थीटा प्लस A phi along A phi, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ द स्क्वायर्स और उसके ऊपर इसका स्क्वायर रूट. ठीक, अच्छा, आपका जो AR है और A थीटा है और जो आपका A phi है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं. ठीक, इसका मतलब कि अगर आप AR को डॉट करें AR के साथ या A थीटा को डॉट करें A थीटा के साथ या फिर अगर आप A phi को डॉट करें A phi के साथ तो क्या मिल जाएगा? 1. और अगर आप AR को डॉट करें A थीटा के साथ, A थीटा को डॉट करें अगर आप A phi के साथ या फिर अगर आप A phi को डॉट करें AR के साथ, क्या मिल जाएगा आपको? 0. सिमिलरली अगर आप क्रॉस करें AR को, अगर क्रॉस करें थीटा के साथ, यू विल गेट A phi. अगर आप A phi को क्रॉस करेंगे AR के साथ, यू विल गेट A थीटा. और अगर आप A थीटा को क्रॉस करेंगे A phi के साथ, देन यू विल गेट AR. अगर आपने कहीं पे अगर ऑर्डर ब्रेक किया तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? आइए अब कन्वर्जन के बारे में देखते हैं, दैट हाउ टू कन्वर्ट. आपको स्फेरिकल सिस्टम से कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में, बट फर्स्ट वी विल कन्वर्ट स्फेरिकल टू cylindrical and then we will use cylindrical to Cartesian conversion to finally get spherical to Cartesian conversion. ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक डायग्राम के ऊपर ध्यान देना है, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको. देखिए, ये मान लीजिए है आपका z एक्सिस. ठीक, इसके ही ऊपर एक स्फीयर टिका हुआ है और ये मान लीजिए है आपका y एक्सिस. ठीक, अब जो पॉइंट है आपका P, उसका ही तो डिस्टेंस आपको निकालना है. ऑरिजिन से आप कहेंगे दिस इज योर R एंड दिस एंगल विल बी योर थीटा एंगल, क्योंकि फाई तो दोनों केसेस में सेम होगा. फाई इज कॉमन. ठीक है, अब आइए देखते हैं इस चीज को. कन्वर्ट करने के लिए लेट अस ड्रॉ सिलेंडर सच दैट दिस पॉइंट P lies on that cylinder, such that this point P lies on that cylinder. ठीक है, तो जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका? क्या मैं कह सकता हूं दिस डिस्टेंस इज योर रो डिस्टेंस? कह सकता हूं. और ये वाला जो डिस्टेंस है क्या कहलाएगा? दिस विल बी योर z डिस्टेंस. तो अगेन दिस विल बिकम योर रो डिस्टेंस एंड दिस विल बिकम योर z डिस्टेंस. और ये एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री. तो फ्रॉम हियर आई कैन सी दैट रो इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड z इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ कॉस थीटा. फाई इज इक्वल टू फाई ओनली. इस डायग्राम को देखिए, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी एक बार में.
देखिए हम लोग पहले कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे सिलेंड्रिकल को हम लोग कार्टेशियन में, ताकि फाइनली हमें मिल जाए स्फेरिकल टू कार्टेशियन का कन्वर्जन। ठीक है, आपके सामने मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया एक स्फेयर को। ठीक है, ये जो स्फेयर है इस पे ही टिका हुआ है पॉइंट P। पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन O इज इक्वल टू R। पॉइंट P का एंगल फ्रॉम Z एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज थीटा। तो मैंने R और थीटा को मार्क कर दिया। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से कन्वर्ट करना है सिलिंड्रिकल में, तो एक सिलेंडर को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो सिलेंडर आप ड्रॉ करेंगे उसको मैंने रेड पेन से ड्रॉ कर दिया है, सच दैट की पॉइंट P लाइज ऑन दैट सिलेंडर एज वेल। तो पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम Z एक्सिस, वर्टिकल डिस्टेंस, दैट गिव्स यू रो, रेडियस ऑफ सिलेंडर। पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द YX प्लेन, इट विल गिव यू Z। तो मैंने रो और Z को मार्क कर दिया। उसके बाद जो आपका रो Z और R का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मैंने उसमें सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा करके ये तीन एक्सप्रेशन लिख दिए। सो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम स्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल। ठीक है, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ स्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल। ठीक है, उसके बाद आइए रिमेंबर या रिकॉल सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन कन्वर्जन। उसमें क्या था आपका, रेट x इज इक्वल टू रो कॉस फाई एंड y इज इक्वल टू रो साइन फाई एंड z वाज इक्वल टू ओनली z। ठीक, तो अगर आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप लिख सकते हैं दैट x इज इक्वल टू r साइन थीटा इंटू कॉस फाई। यहां पे आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू r cos theta into sin phi, and you can write that z will be equal to r cos theta, not phi, cos theta. Now this blue box is your final result. And you can further do one thing, you can square all these three equations and add them, and you will find that r square is equal to x square plus y square plus z square. ठीक, phi क्या हो जाता है आपका, tan inverse of y by x. This also you know. Similarly आपका थीटा क्या हो जाएगा, your theta will be, अगर आप x स्क्वायर और y स्क्वायर अगर ऐड कर दें, देन यू विल फाइंड दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल गिव यू r स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. Okay, so and when you divide them by z, then you will find that theta is equal to tan inverse of रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड. ये तीन आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए. ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, उसको फिर डिवाइड कर देंगे जब आप जेड से, तो आपका इतना आंसर आएगा. आइए अब कन्वर्जन के बारे में देखते हैं. कन्वर्जन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल सिस्टम्स. तो आप लोगों ने स्फेरिकल सिस्टम का तीनों वेक्टर को स्टडी कर लिया. नाउ यू नो कि स्फेरिकल सिस्टम में जो तीन वेक्टर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उनके डायरेक्शंस क्या होते हैं, और आर थीटा एंड फाई के रेंजेस क्या क्या होते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट कार्टेशियन एंड स्फेरिकल सिस्टम्स इन बिटवीन देम. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं आया है, बट यू शुड नो कन्वर्जन. ठीक है, अब देखिए स्फेरिकल टू कार्टेशियन जाना है, हम लोग पहले स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल जाएंगे, फिर कार्टेशियन जाएंगे. इससे पिछली क्लास में वी हैड ऑलरेडी डन कन्वर्जन ऑफ सिलेंड्रिकल टू
कार्टेशियन, वी हैव ऑलरेडी डन दैट कन्वर्जन। तो हम लोग पहले स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल कन्वर्ट करेंगे, फिर सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन जाएंगे। ठीक है, तो आइए आपका डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका स्फीयर जिस पे टिका हुआ है आपका पॉइंट P। आपने इसको जोड़ दिया है O से साथ। ठीक, तो यही वाला डिस्टेंस है आपका R और ये वाला एंगल है आपका थीटा एज पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, ऐसा सिलेंडर जिसके सरफेस पे ये पॉइंट P हो। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है जिसे कि हम लोग z एक्सिस से मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका रो। और जो ये वाला डिस्टेंस है जो कि आपका yx प्लेन से डिस्टेंस है, दैट इज योर z कोऑर्डिनेट। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, r रो एंड z। क्या इसमें मैं कह सकता हूं कि एज पर राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी आई कैन से दैट रो इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड z इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ cos थीटा। और फाई का वैल्यू तो फाई ही होगा, बिकॉज फाई इज कॉमन बिटवीन स्फेरिकल एज वेल एज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए r है यहाँ पे और ये रहा आपका एंगल थीटा, तो z कैन बी रिटन एज r cos थीटा एंड रो कैन बी रिटन एज r sin थीटा। ठीक है, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। नाउ अब आप याद कीजिए, नाउ यू रिकॉल, हम लोगों ने सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कन्वर्ट किया था। उसमें x क्या आ रहा था आपका, रो कॉस फाई, y क्या आ रहा था आपका, रो साइन फाई, और z तो बराबर z ही होगा। ये आपको याद है, पिछली क्लास में किया था हम लोगों ने, डेरिवेशन करके दिखाया था आपको ऊपर से डायग्राम बना करके। तो अब अगर आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप लिख सकते हैं दैट x इज इक्वल टू r साइन थीटा इंटू कॉस फाई। आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रो साइन फाई, रो का मतलब r साइन थीटा हो गया, तो r साइन थीटा इंटू साइन फाई एंड z इज इक्वल टू r cos थीटा। ये हो गया आपका कन्वर्जन का फॉर्मूला। इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट अस स्क्वायर एंड ऐड, तो अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे देन यू विल गेट r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि z स्क्वायर इज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे यू विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे यू विल गेट दिस रिजल्ट। और अगर आप डिवाइड कर दें रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड कर दें z से, देन यू विल गेट r कट जाएगा, यू विल सिंपली गेट tan थीटा। दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो फाइनली मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं यहाँ पे, thus we can say that r is equal to root over of x square plus y square plus z square, theta is equal to tan inverse of root over of x square plus y square by z, और फाई तो आप लोगों को पहले से ही पता है, फाई क्या हो जाएगा आपका tan inverse of y by x। This is the conversion between spherical and Cartesian coordinates, and so is this blue box as well। यहाँ पे आप spherical से Cartesian कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आप Cartesian से spherical में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बट इतना डायग्राम और ये इक्वेशंस आपके लिए सफिशिएंट है।
अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप लोग एक बार खुद से इसको डराइव करके देखिएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आइए कन्वर्जन करते हैं हम लोग बिटवीन वेक्टर्स, या फिर बिटवीन यूनिट वेक्टर्स पहले कर लेते हैं, फिर वेक्टर्स में आएंगे। लेट अस डू यूनिट वेक्टर्स फर्स्ट। ठीक है, इसमें मैं आपको डायरेक्टली इसका रिजल्ट दे देता हूं और आई विल टेल यू कि आपको कैसे इसको कन्वर्ट करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू डू इट। आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले जो आपका ये डायग्राम है जिसमें मैंने स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल को एक साथ बनाया है, इस वाले डायग्राम में यू फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क आउट द वेक्टर्स। जैसे ये हो जाएगा आपका ए आर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए थीटा, ठीक, और सिलिंड्रिकल वेक्टर्स को पहले मार्क आउट कर लीजिए। जैसे ये हो जाए, मैं दूसरे पेन से कर देता हूं उसको, लेट अस यूज ब्लैक हियर। ये हो जाएगा आपका ए रो, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए जेड। नाउ अगेन you see here there is an angle of theta here. Let this angle be equal to alpha, where theta plus alpha is equal to 90 degree. अब ये जो अल्फा है ये जिन दो लाइंस के बीच में है उसके उल्टे साइड भी अल्फा होगा और यहाँ पे फिर थीटा हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, आप ए आर को ब्रेक कर दीजिएगा इन कॉम्पोनेंट्स अलोंग ए रो एंड ए जेड, कॉस और साइन यूज करके। सिमिलरली आप ए थीटा को ब्रेक कर दीजिएगा अलोंग ए रो एंड माइनस ए जेड, कॉस साइन यूज करके, ठीक, और आपका ए फाई इज इक्वल टू ए फाई रहेगा। उसके बाद जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था, दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को लेकर आइएगा, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इस वाले मैट्रिक्स से, तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा फ्रॉम स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिकली थोड़ा लेंदी है लिखने में, इसलिए आई एम अवॉइडिंग इट इन दिस क्लास। आप इसको कर सकते हैं, तरीका यही है उसमें, दैट फर्स्ट mark out vectors in cylindrical and spherical coordinate systems। ठीक है, break AR A theta along A rho and A phi, ठीक, arrange in matrix, then you will use A rho A phi A z is equal to some matrix A multiplied into AX AY AZ, and you will substitute this in the third step. Finally you will get AR A theta and A phi is equal to some matrix into AX AY and AZ, right? और आप इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, इनवर्स लेकर के, दैट ऑल्सो यू विल गेट योर आंसर एज। मैं आपको इसका फाइनल आंसर दे देता हूं, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, AR A theta and A phi, AX AY and AZ। आप कैसे कैसे लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस फाई, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा इंटू साइन फाई, फिर यहाँ लिखेंगे आप कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, देन यू विल राइट कॉस थीटा इंटू साइन फाई, देन यू विल राइट माइनस साइन थीटा। फाइनली ए फाई के लिए आप लिखेंगे माइनस साइन फाई, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस फाई, हियर यू विल राइट 0।
ठीक है। और यदि आप इसी मैट्रिक्स अगर इनवर्स ले लेंगे तो ax, ay, az, ar, a theta एंड a phi। यहां पे क्या लिखेंगे आप? यू विल राइट हियर sin theta into cos of phi। You will write here sin theta into cos phi। यहाँ पे हो जाएगा आपका cos theta into cos phi। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस sin phi। यहाँ पे होगा sin theta into sin phi, cos theta into sin phi। You will write here cos of phi। You will write here cos theta माइनस साइन थीटा एंड देन फाइनली 0। ठीक है, लेंथी डेरिवेशन है और इसका रिक्वायरमेंट है नहीं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल एक बार करके इसको देख लीजिएगा। इन केस अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज कन्वेंशनल में आ गया या सिविल सर्विस में आ गया तो यू शुड बी एबल टू डू इट। इसीलिए मैंने आपको इसका सिंपली टेक्निक बता दिया है कि टेक्निक क्या है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। आप सबसे पहले वेक्टर्स को मार्कआउट कर दीजिएगा, फिर AR थीटा को ब्रेक कीजिए along a rho and a phi, then arrange it in a matrix format, then use the results obtained in the previous class, substitute them and finally you will arrive at this matrix। ठीक है, इसका जब इन्वर्ट करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, यह चीज आपको क्लियर हुआ? राइट, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको क्लियर हो गया, बट इसको एक बार आप जरूर खुद से करके देखिएगा। सी, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड नहीं होते। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं, इसके ऊपर तो क्यों पढ़ेंगे। बट उन चीजों को जानना और उन चीजों का प्रूफ समझना, या एटलीस्ट अपने में इतनी कैपेसिटी रखना कि अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ये बहुत जरूरी है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक हो जो कि रिलेटेड टॉपिक है, अब जैसे ये जो आपका कन्वर्जन है स्फेरिकल टू कार्टेशियन, ये करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आप कर सकते हैं। बस आपको वेक्टर्स मार्क आउट करना है, एंगल के अकॉर्डिंग ब्रेक कर देना और मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर देना है। बट बहुत सारे लोग इसको टॉपिक को छोड़ देते हैं, एग्जामिनेशन में कभी नहीं आता। बट आप ये देखिए कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में तो है, पहली चीज। दूसरा, इसको समझना या याद करना भी आसान है, ज्यादा मुश्किल होगी नहीं इसमें। सिंपली वेक्टर को रिजॉल्व ही तो करना और मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर देना है, हो गया। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, इसको आपको कंट्रोल में अपने रखना बहुत जरूरी है, आपको अपने ग्रिप में रखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको अभी घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे और गलती से अगर ये टॉपिक एग्जामिनेशन में आ गया, एग्जामिनेशन हॉल में पक्का आप थीटा का फाई, फाई का थीटा, साइन का कॉस कर देंगे, प्रेशर ज्यादा होगा ना उस टाइम पे। ऐसा काफी कॉमन है होना। आप ये चीज मान के चलिए कि आप जो रूम पे पढ़ रहे हैं और आपको लगता है ये टॉपिक मुझे अच्छे से कवर कर लिया मैंने, एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तो आप अपने कैपेसिटी के 80% पर रन कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं होता इतना सोचने के लिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालने के लिए। आपने जिस चीज को बार बार प्रैक्टिस कर रखा है वही चीज आपके काम आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। एक पुरानी चाइनीज कहावत है कि एक मूवी भी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार को जब ट्रेन कर रहा होता है उसका ट्रेनर, तो उसको बोलता है, अक्षय कुमार को बोलता है कि मुझे यानी ट्रेनर को तुम्हारे उन 10,000 मूव से कोई खतरा नहीं है जिन्हें तुम्हें सिर्फ एक बार प्रैक्टिस किया, लेकिन मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसे तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया। तो बेसिकली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ठीक है, और यदि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस या इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस रूम पे नहीं करके जाएंगे एग्जामिनेशन में करने बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है हो जाए, रेयरली ऐसा होगा,
देखो मेरे से तो नहीं हो पाएगा जहां तक मुझे अपने बारे में पता है, क्योंकि एग्जामिनेशन का माहौल ही डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप इस तरह के डेरिवेशंस को खुद करके देखिए, यू विल फाइंड जॉय जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा देन आई विल गिव यू स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आल्सो। ठीक, सो दिस इज रिगार्डिंग योर कन्वर्जन मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद let us focus upon conversion from वेक्टर टू वेक्टर। यानी कि अगर आपको ax प्लस ay प्लस az दे रखा है, या फिर अगर आपको ar प्लस a थीटा प्लस a दे रखा है, आपस में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपके सामने दो इक्वेशन है, इसमें जितने भी छोटे ए हैं उनको रिप्लेस कर दीजिए कैपिटल ए से, आपका काम हो जाएगा। जितने भी छोटे ए हैं उनको आप रिप्लेस कर दीजिए कैपिटल ए से, आपका काम हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए आप डायरेक्टली इस चीज को लिख सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट इट। ठीक है, सो दिस विल कंप्लीट योर कन्वर्जन टॉपिक। आप एक बार खुद से करके जरूर देखिएगा, नहीं होगा तो आई विल गिव यू स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आल्सो। ओके, आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। कन्वर्जन वगैरह हम लोगों ने सब किया, आइए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। Okay, so let us do some problems on what we have learned so far. So far we have completed your Cartesian coordinates, spherical coordinates and cylindrical coordinates. We have also seen their interconversion. So let us do some problems based on this. Now this problem is available on your PPT. There is a given point P minus 2, 6, 3 and then there is a given vector A as well. You have to convert this point P into cylindrical as well as to spherical coordinates. Okay. Now let us start. First we will convert this point P into cylindrical coordinates. So we are using Cartesian to cylindrical coordinate conversion. Okay. So x is equal to minus 2, y is equal to 6 and z is equal to 3. If you can recall, what is your rho? Rho is given by root over of x square plus y square is equal to root over of 4 plus 36 will give you approximately 6.32. What about your phi? Phi is given by tan inverse of y by x, that is tan inverse of 6 by minus 2. This you can check, it will come out to be 108.43 degree. And z is same as z, so z will stay at 3. So your point minus 2, 6, 3 in Cartesian is same as saying 6.32, 108.43, 3 in cylindrical coordinates. So this completes your conversion into cylindrical coordinates. But here I would like to add something more for your benefit. आपके नॉलेज के लिए एक और चीज, जरा फाई के कैलकुलेशन को देखिए। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 6 बाई माइनस 2। आप जब इसको इवेल्युएट करने जाएंगे एंड व्हेन यू पुट दिस थिंग इन योर कैलकुलेटर, तो आपको इसका आंसर मिलेगा -71.56 डिग्री। और आप आंसर अगर यहाँ पे ये लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि सही आंसर है 108.43 डिग्री। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता है ध्यान से देखिए। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का, उस वक्त मैंने आपको फाई कैलकुलेशन के टाइम पे बताया था
यू विल हैव टू चेक कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है आपका 6,2. यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 6,-2. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -6,-2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -6,2. ये रहा x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस. अगर मैं आपसे कहूं मुझे बताओ ये एंगल थीटा कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 6/2 विच विल गिव यू 71.56 डिग्री. एब्सोल्युटली करेक्ट. यहां तक तो ठीक है. ठीक. नाउ इफ आई आस्क यू कि मुझे ये वाला एंगल बताओ, ब्लू वाला एंगल, व्हाट इज दिस वैल्यू थीटा इज इक्वल टू. अब अगर आपने कैलकुलेटर में डाला दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 6/-2, तो एंगल आ रहा है आपका -71.56 डिग्री विच इज रॉन्ग. देन हाउ विल यू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर निकालने के लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है, कैसे? देखिए ऐसे. अब सबसे पहले ये छोटा वाला एंगल निकालिए ना, अल्फा. अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिंपली tan इनवर्स ऑफ 6/2 यानी कि 71.56 डिग्री. तो ये जो ब्लू वाला जो एंगल है आपका थीटा, that can be written as 180 degree minus alpha. This will give you 108.43 degree. Are you getting my point? किस क्वाड्रेंट में है वो एंगल, ये इंपॉर्टेंट होता है जानना. सिर्फ tan इनवर्स निकालने से आपका काम नहीं होगा. किस क्वाड्रेंट में है वो एंगल, ये जानना बहुत जरूरी है. इसीलिए जो अल्फा है, आप देखिए अल्फा कैलकुलेशन के लिए बहुत सिंपल है. आप ये रेड ट्रायंगल को देखिए, इसमें ये वाली हाइट का मैग्नीट्यूड है 6, इसका मैग्नीट्यूड है 2, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 6/2. अल्फा का वैल्यू निकल गया. अब क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री होना है, तो जो थीटा है दैट विल गिवन बाय 180 डिग्री माइनस अल्फा, दैट इज 108.43 डिग्रीज. सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड थीटा फॉर -6, -2, सबसे पहले आप ये वाला स्मॉल एंगल निकालिए अल्फा. अल्फा कितना हो जाएगा आपका? अगेन tan इनवर्स ऑफ 6/2 यानी कि 71.56 डिग्री. तो आपका जो पूरा का पूरा थीटा बनता, उसका वैल्यू कितना हो जाता? उसका हो जाता थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 71.56 डिग्री यानी 251.56 डिग्री. ठीक. सिमिलरली इफ आई आस्क यू दैट यू फाइंड मी थीटा या फाई जो भी कह लीजिए फॉर पॉइंट -6, -2, सबसे पहला भी वाला एंगल निकालिए छोटा सा अल्फा. व्हाट इज दिस अल्फा इक्वल टू? अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 6/2, दैट इज अगेन 71.56 डिग्री. तो ओवरऑल थीटा की वैल्यू विच इज मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 71.56 डिग्री, which will give you 288.44 degree. That is why it is important for you to know कि आपका जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. क्योंकि आपको एंगल जब भी मेजर करना है, यू विल ऑलवेज मेजर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो आप हमेशा एक छोटा एंगल निकाल लीजिए और फिर देखिए आपको 360 डिग्री में से माइनस करना है या 180 डिग्री में प्लस करना है या 180 डिग्री में से माइनस करना है. ठीक है. दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डिस्कस विथ यू. ये चीज आपको कंट्रोल सिस्टम में भी जब रूट लोकस करेंगे उस टाइम पे काम आएगा. वहां पे भी इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपका एंगल आप कहां से मेजर कर रहे हैं और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करना होता है. ठीक है. एनीवे, सो दिस कंप्लीट्स योर कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल. नाउ लेट अस गो फॉर कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू स्फेरिकल. Let us try to convert this point from Cartesian to
स्फेरिकल। स्फेरिकल में आपको पता है दैट r is given by रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप इसको निकाल लेंगे कैसे, रूट ओवर ऑफ 4 प्लस 36 प्लस 9 यू विल गेट 7। ओके, आपको पता है थीटा इज गिवन बाई tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। तो tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 40 अपॉन 3। अब देखिए यहाँ कहीं नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब छोटा एंगल ही होगा। आप कैलकुलेट करिएगा इसको, मैं भी कर लेता हूँ। रूट ओवर ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 3, इसका लीजिएगा tan इनवर्स, यू विल गेट 64.62 डिग्री। phi will be same as the phi in that system, cylindrical system, or you can again calculate as phi is equal to tan inverse of y by x, tan inverse of 6 by minus 2, and you will get here 108.43 degree. So you can say that your expression for circular spherical coordinate is P7 64.62 degree, 108.43 degree. This is same as saying P in cylindrical as 6.32, 108.43 degree, comma 3, and in Cartesian this was -2, 6 and 3. ओके, अब इसके बाद आपको वेक्टर को भी कन्वर्ट करना है। आइए वेक्टर कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको हमने एक वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर है विच इज गिवन बाय वाई ए एक्स प्लस एक्स जेड ए वाई। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्सप्रेस कीजिए वेक्टर ए को इन सिलेंड्रिकल एज वेल एज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे करेंगे। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी वो करा के रखा है दैट व्हाट इज द कन्वर्जन मैट्रिक्स ए रो ए फाई एंड ए जेड का कन्वर्जन फ्रॉम ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ये कराया कॉस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 एंड 1। ठीक है, अब आपको जो वेक्टर दे रखा है वेक्टर ए, उसको कैसे एक्सप्रेस किया है? इट इज y along ax प्लस x प्लस z along ay प्लस 0 along az। ठीक, अब आप क्या करेंगे? यू विल सिंपली substitute these values here, so this will become y, this will become x plus z, and this will stay as 0। ठीक, आप इसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन को जब खोल देंगे तो you will find that a row is equal to y cos phi plus x plus z times of sin phi, and a phi will be equal to minus y sin phi plus x plus z times of cos phi, and your az will be simply equal to 0। ठीक, now you can substitute all of these and you can find out the expression for your vector. So your vector a in cylindrical coordinates will be, ए रो का जो एक्सप्रेशन है आप उसको लिख दीजिए y cos phi प्लस x प्लस z टाइम्स ऑफ sin phi along a रो प्लस माइनस y sin phi प्लस x प्लस z cos phi along a phi प्लस 0 along az।
ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन। सिमिलरली आपको अगर ए आर, ए थीटा और ए फाई निकालना हो, आप उसका कन्वर्जन मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं along with ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। और आप ए एक्स के बदले कॉम्पोनेंट लिख दीजिएगा इसका y, यहाँ पे x प्लस जेड, एक्सपैंड कर लीजिएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं, you can check it, that AR will be y sin theta cos phi plus x plus z into sin theta sin phi. A theta is equal to y cos theta cos phi plus x plus z into cos theta into sin phi, and your a phi will be minus y sin phi plus x plus z into cos phi. इसको आप अरेंज कर लेंगे वेक्टर फॉर्मेट में, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आप इसके अलॉन्ग लिख देंगे ए आर, ए थीटा एंड ए फाई के यूनिट वेक्टर्स को, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन आपको ये भी कह रहा है दैट इवैल्यूएट ए एट पी इन कार्टेशियन सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल सिस्टम। तो बेसिकली ये कह रहा है आपसे कि आपका जो वेक्टर है ए, आप उसको वैल्यू को लिखिए एट द गिवन पॉइंट पी। ये भी बहुत आसान है, आपको सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, आप इसको कैसे करेंगे देखिए। फॉर सिलिंड्रिकल सिस्टम आपका एक्सप्रेशन कहाँ है, आपका एक्सप्रेशन ये है। आप इसमें वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, when you will substitute the values here, then you can develop the answer, and your answer will be that vector A is equal to minus 0.9487 A row minus 6.008 A5 at point P. ठीक, सिमिलरली जो आपका स्फेरिकल सिस्टम है, इसमें जब आप डेवलप करेंगे वैल्यूज को लिख करके, यू विल गेट दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस 0.8571 ए आर माइनस 0.4066 ए थीटा माइनस 6.008 ए फाई। ठीक, एट पॉइंट पी, दिस इज एट पॉइंट पी। सिमिलरली जो ये था आपका, दिस वाज एट पॉइंट पी ओनली। ठीक है, और आप लास्ट में चाहें तो एक काम ये भी चेक कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन कार्टेशियन शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन सिलिंड्रिकल शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन स्फेरिकल। You will check that all these three values come out to be exactly equal to 6.083. मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके उनको ऐड कर दीजिए। ओके, दिस इज हाउ यू विल फाइंड द मैग्नीट्यूड्स। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। नो डाउट एक लेंथी क्वेश्चन, और अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो इंजीनियरिंग सर्विस में आएगा तो कम से कम 20 मार्क्स का आएगा, एटलीस्ट 20 मार्क्स। बट ऐसा आता नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है कि आपको पता हो कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सॉरी, ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इस क्वेश्चन में प्रॉपरली टाइप नहीं हुआ है। एक पार्ट इस क्वेश्चन का छूट गया है, वो ये है कि आपको गिवन है, आप लोग लिख लीजिए अपने नोटबुक में, गिवन वेक्टर बी इज इक्वल टू 10 बाई आर ए आर प्लस आर कॉस थीटा
ए थीटा प्लस ए फाई, ये है आपका गिवन वेक्टर बी। और आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इस वेक्टर को एक्सप्रेस करना है इन कार्टेशियन एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये वेक्टर आपका गिवन है क्वेश्चन में, पीपीटी में वेक्टर टाइप नहीं हुआ है, वी आर सॉरी फॉर दैट। आप इस चीज को ऐड कर लीजिए अपने क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका गिवन वेक्टर है, आपको इसको एक्सप्रेस करना है इन कार्टेशियन एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और आपको इस वेक्टर को इवैल्यूएट करना है इन दो पॉइंट्स के ऊपर, ठीक। आइए, आपका जो गिवन वेक्टर है ये किस सिस्टम में, दिस इज गिवन इन योर स्फेरिकल सिस्टम, ठीक। तो आपको स्फेरिकल टू कन्वर्ट करना है किसमें, कार्टेशियन में। डू यू नो द मैट्रिक्स? यस, यू ऑब्वियसली नो द मैट्रिक्स। सो यू कैन से कि ये जो वेक्टर है इसका जो कंपोनेंट होगा bx, by एंड bz, दिस विल बी गिवन बाय कन्वर्जन मैट्रिक्स इनटू आपका br यानी कि 10/r, आपका b थीटा यानी कि r cos थीटा, और आपका b फाई यानी कि 1। कन्वर्जन मैट्रिक्स आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है, आप उसको सिंपली यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, cos theta sin phi and cos phi, cos theta minus sin theta and 0। आप इसके बाद इसको एक्सपैंड कर लीजिएगा, जैसे ही आप एक्सपैंड करिएगा आपके सामने आपके वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर bx, by एंड bz। नो डाउट लेंथी आंसर आएगा इसका, बट दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड, ठीक। सिमिलरली आपको जब इसको कन्वर्ट करना होगा इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, देन अगेन यू कैन यूज कन्वर्जन फ्रॉम कन्वर्जन मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं आप। यू कैन से b रो, b फाई एंड bz कन्वर्जन मैट्रिक्स, यू कैन यूज हियर योर bx, by एंड bz मैट्रिक्स आपको पता है ऑलरेडी, आप उसका यूज करके वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट। अगर मान लीजिए आ गया तो इट शुड नॉट बी लाइक यू आर सीइंग द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर सीइंग एन अनसीन क्वेश्चन। नहीं, यू शुड हैव सीन ऑल द क्वेश्चंस, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड b एट -3,4,0 एंड b एट 5, π/2, -2। ये p/2 नहीं π/2 होगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एट पॉइंट p1 इट इज गिवन दैट you have to find out the vector b, and point p1 is -3,4,0 and point p2 is 5, π/2, -2। आपको इसमें सिर्फ इतना जानना है ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव है, कार्टेशियन का, और ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, सिलिंड्रिकल में। आपको बस वैल्यू जब आप पुट कर देंगे इन रेस्पेक्टिव एक्सप्रेशंस तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसके आंसर दे देता हूं। सिलिंड्रिकल में यू विल सी दैट वेक्टर b इज इक्वल टू 2.467 a रो प्लस a5 प्लस 1.167 az, ठीक है। and in Cartesian this vector b will be equal to -2ax plus ay plus 0 az, ठीक है। So this is how you will find out the values। चलिए, ये हो गया आपके कन्वर्जन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
इस तरह क्वेश्चन नहीं आते एग्जामिनेशन में, और आएंगे तो कम से कम 20 मार्क्स में आएंगे। क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आ सकता है वो है किसी गिवन पर्टिकुलर पॉइंट को कन्वर्ट करना फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस तरह क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, ओके, आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कांस्टेंट सरफेसेस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इमेजिनेशन आपका दिखेगा, इसमें आप कितना इमेजिन कर सकते हैं वो दिखेगा। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसके पहले के जो कन्वर्जन टॉपिक्स थे ये थोड़े बोरिंग से टॉपिक हैं क्योंकि लेंदी होते हैं बहुत ज्यादा, बट ये टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग है। आइए, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट सरफेसेस। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही देखते हैं। मान लीजिए ये है आपका x, ये है आपका y और ये रहा आपका z। ठीक, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे वो सरफेस बताओ, वो सतह बताओ जिसपे कि y कोऑर्डिनेट फिक्स है, मतलब मैं आपसे ये कहूं कि ड्रॉ मी द सरफेस y इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है। y का मतलब क्या होता है, y का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम xz प्लेन। सो y इक्वल टू 2 का मतलब xz प्लेन से 2 गज की दूरी बनाए रखना, नॉट फॉर कोरोना बट फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 गज की दूरी बनाए रखना। ठीक, अभी आप देखिए ये जो आपका xz प्लेन है, ये आप जिस रूम में बैठे हैं आपके लेफ्ट तरफ जो दीवार है वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप अपने दीवार से 2 गज की दूरी पे हैं तो आप y इक्वल टू 2 प्लेन पे हैं। आप खुद को थोड़ा सा आगे ढकेलिएगा तो भी आप उस दीवार से 2 गज की दूरी पे ही रहेंगे, और अगर आप खुद को थोड़ा पीछे भी ढकेलिएगा तो भी आप उस दीवार से 2 गज की दूरी पे ही रहेंगे। तो आप देखिए ये जो प्लेन है आपका, दिस इज योर XZ प्लेन, जो कि आपके स्क्रीन से परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है। या फिर आप जिस कमरे में बैठे हैं आपके लेफ्ट तरफ जो दीवार है, मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं बिल्कुल सामने एक दीवार के, तो आपके लेफ्ट तरफ एक दीवार होगी, दैट इज योर XZ प्लेन। इस प्लेन से आपको 2 गज की दूरी बना के रखनी है, तो वो जो पॉइंट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहां से यहां तक की दूरी 2 फिक्स रहेगी। आप मान लीजिए यहां बैठे हैं, अगर आप खुद को थोड़ा सा आगे भी ढकेलेंगे तो भी आप 2 गज की दूरी पे ही हैं फ्रॉम XZ प्लेन। अगर आप खुद को थोड़ा पीछे ढकेलेंगे तो भी आप 2 गज की दूरी पे हैं। अगर आप ऊपर जाएं, नीचे जाएं, डायगोनल भी जाएं इस प्लेन में, तो भी आप 2 गज की दूरी पे ही हैं फ्रॉम द XZ प्लेन। सो दिस ब्लू सरफेस कैन बी कॉल्ड एज y इज इक्वल टू 2 प्लेन। ठीक है, सिमिलरली इफ आई टेल यू दैट ड्रॉ मी अ प्लेन विच इज y इज इक्वल टू 1 प्लेन, तो आप कहेंगे सर इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 रह जाएगी, दैट विल बी योर y इज इक्वल टू 1 प्लेन। तो आप ध्यान दीजिए कि जो आपका XZ प्लेन है बिल्कुल उसके पैरेलल जा रहा है y इक्वल टू 2 प्लेन, y इक्वल टू 1 प्लेन। सो दिस इज नोन एज कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेस। ठीक है, आइए अभी आपको तीनों सरफेसेस में दिखाता हूं कैसे होगा कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार ऊपर से देखते हैं इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को। y है, ये z है, और आपका x एक्सिस ऐसे आपके आंखों में तीर मार रहा है। अब आप देखिए, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, x एक्सिस ये जो डॉट है इससे बाहर आ रहा है और सीधा आपकी आंखों में तीर मार रहा है। ठीक, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे x इज इक्वल टू 5 सरफेस ड्रॉ करना है, बताओ कैसे होगा। आपको इतना बताना है x इक्वल टू 5 सरफेस आपके स्क्रीन से नीचे होगा या फिर आपके स्क्रीन से ऊपर होगा। ऑब्वियसली आंसर है आपके स्क्रीन से ऊपर होगा। अगर आप अपने डिवाइस का, जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसका स्क्रीन कवर को पैरेलली उठा लें तो वो
उठते ही बन जाएगा x इक्वल टू 5 का सरफेस। ठीक, यानी x इक्वल टू 5 का सरफेस को अगर ऊपर से आप देखेंगे तो वो भी कुछ इस तरह से ही दिखेगा, बस ये है कि ये थोड़ा ऊपर है इससे। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 का मतलब कि आप जिस सरफेस पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे इस वीडियो को देख रहे हैं, उस मोबाइल या डेस्कटॉप का बैक साइड, जैसे जहां पे आपकी बैटरी लगी हुई है लैपटॉप की, या आपके स्क्रीन का बैक साइड, या आपके मोबाइल का फोल्डेबल कवर, दैट विल बी योर x इज इक्वल टू -2। ठीक, दैट विल बी योर कांस्टेंट x सरफेस। आइए फाइनली मैं आपको बताता हूं इसमें कि आप कैसे कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर z। अगर आपसे कहा जाए ड्रॉ मी अ z कांस्टेंट सरफेस, दिस विल बी योर z कांस्टेंट सरफेस। ठीक, xy प्लेन के बिल्कुल पैरेलल। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि ड्रॉ मी अ y इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, यानी xz प्लेन के बिल्कुल पैरेलल। ठीक, प्लेन है तो कहीं तक भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको बाउंड करें। सिमिलरली इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ मी x इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस, वो हो जाएगा आपका yz प्लेन के बिल्कुल पैरेलल। ठीक, अब यहां पे आप लोगों से एक छोटा सवाल है। आप देखते हैं आपका इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग है। जवाब तो आपको नेक्स्ट क्लास में ही मिलेगा, बट तब तक थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं। हालांकि बहुत आसान सवाल है। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं दैट y इज इक्वल टू 2 सरफेस, आप ड्रॉ कर दीजिए, एंड z इज इक्वल टू 5 सरफेस को भी आप ड्रॉ कर लीजिए, जैसा कि आपके सामने मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ इस डायग्राम में। मान लीजिए दिस इज योर y इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज योर z इज इक्वल टू 5 सरफेस। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे को काट भी रहे हैं, इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं ना। आपको ये बताना है कि इनके इंटरसेक्शन का डिजाइन कैसा है। व्हाट इज द डिजाइन ऑफ देयर इंटरसेक्शन। मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या एक लाइन होगा, या फिर एक सेमी सर्कुलर आर्क होगा। ये 3 ऑप्शन देता हूं मैं आपको, आप लोग जरा सोच के देखिएगा कि क्या होना चाहिए। ठीक, ओके, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। लेट अस गो टू सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल में कांस्टेंट सरफेसेस कैसे कैसे आएंगे उस चीज को देखते हैं। सिलिंड्रिकल में क्या क्या होते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स, रो, फाई एंड जेड। जेड तो आपको पता ही है कैसे होगा, क्योंकि आपने देख लिया है एक्स वाई जेड सिस्टम में, कार्टेशियन में, कि जेड कांस्टेंट सरफेस क्या होता है। बट एनीवेज फिर से देखेंगे उसको। ये है आपका y, ये है आपका x, और ये रहा आपका z। ठीक, रो का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रो? रो का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो अगर मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर दूं ऐसा, और मैं आपसे ये कहूं कि सिलेंडर का रेडियस इज इक्वल टू 5, यानी रो इज इक्वल टू 5, तो इस सिलेंडर के सरफेस पे कोई भी पॉइंट हो, यहां हो, यहां हो, यहां, यहां, कहीं पे भी हो, कर्व्ड सरफेस पे, नॉट ऑन दी सर्कुलर टॉप एंड बेस, कर्व्ड सरफेस पे कोई भी पॉइंट हो, वो सारे के सारे पॉइंट पे रो इज इक्वल टू 5 होगा। बिल्कुल होगा। आप अपने सामने एक पानी का ग्लास ले लीजिए, उसमें एक पेन को डुबा दीजिए और पेन को वर्टिकल रखिए उसमें। जैसे मान लीजिए आपका ग्लास ये है, आप इसमें एक पेन को वर्टिकल रखिए ऐसे, ये पेन आपका जेड एक्सिस है। ठीक, अब इस पानी के ग्लास के सरफेस पे, यानी बाहरी सतह पे कोई भी पॉइंट हो, वो इस जेड एक्सिस से उतने ही 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, भले ही वो पॉइंट सरफेस पे कहीं पे भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं बाएं, आगे पीछे, कहीं पे भी हो। सो दैट इज योर रो इज इक्वल टू 5. So rho is equal to constant surface will be a cylindrical surface. आप इस चीज को नोट कर लीजिए।
that rho is equal to constant surface will be a cylindrical surface. ठीक, उसके बाद z को देखते हैं पहले क्योंकि ज्यादा आसान है. z इक्वल टू 2 सरफेस. z का मतलब क्या होता है भाई? डिस्टेंस फ्रॉम xy प्लेन. तो z इज इक्वल टू 2 सरफेस जो होगा वो आपका एक प्लेन होगा जो कि xy प्लेन के परपेंडिकुलर, जो कि आपका xy प्लेन के परपेंडिकुलर, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल. So z equal to constant will be a plane which is parallel to xy plane, which is parallel to xy plane. ठीक है. अब आपके लिए अगेन एक सस्पेंस का सवाल, उसके बाद फाई को देखेंगे. अगर मैं आपसे कहूं कि रो इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 2 सर्फेसेस आर इंटरसेक्टिंग, देन व्हाट इज द डिजाइन ऑफ देयर इंटरसेक्शन? पॉइंट होगा, लाइन होगा, आर्क होगा, या फिर एक फुल सर्कल होगा? सोचिए सोचिए, आंसर तो आपको नेक्स्ट क्लास में ही मिलेगा. ठीक है, आपको हेल्प कर देता हूं. ऑप्शन सी या डी में से कोई एक होगा. पॉइंट या लाइन तो नहीं होगा, बहुत कॉमन है जानना. सी या डी में से कोई एक होगा, सोचिए. ठीक, आइए नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट इज योर फाई इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस. इसको रेड पेन से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अब आप देखिए फाई का मतलब क्या है. फाई का मतलब क्या होता है? फाई इज एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अभी आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहां पे एक पॉइंट है, पॉइंट P. इसके लिए कुछ वैल्यू होगा फाई का. ठीक, ये जो पॉइंट P है ये सिलेंडर के सरफेस पे कुछ देर के लिए आप मान लीजिए. ठीक, पॉइंट P को थोड़ा सा अगर ऊपर कर दें तो भी एक्स एक्सिस थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और जो एंगल है वो उतना ही रहेगा आपका फाई. पॉइंट P को थोड़ा सा नीचे कर दें तो भी एक्स एक्सिस को थोड़ा नीचे कर देंगे आप तो भी एंगल उतना ही रहेगा आपका फाई. तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉइंट P है, आपका जो ये पॉइंट P है, ये फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस को तब दिखाएगा जब आप एक्स एक्सिस को ऊपर नीचे करके भी सेम फाई को मेंटेन कर सकते हैं. ठीक, आइए और थोड़ा देखते हैं इसमें. अगर आप मान लीजिए आप इसी पॉइंट P को थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर दें अलोंग द सेम लाइन, कि मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे क्लियर नहीं होगा, फिर से फ्रेश ड्रॉ करते हैं. आइए, यहाँ पे इमेजिनेशन रखना बहुत जरूरी है. एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है, ठीक. अभी आप मान लीजिए कि आपका एक पॉइंट है यहाँ पे P, जिसको आपने इससे जोड़ दिया एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट द एंगल फाई. ठीक, अभी आपने देखा पॉइंट P को ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं तो भी एंगल फाई सेम रहेगा. तो एक दूसरा सवाल ये है कि अगर आप पॉइंट P को थोड़ा अंदर ले जाएं या थोड़ा बाहर भी ले जाएं तो क्या फाई में कोई फर्क पड़ेगा? नो, फाई तब भी आपका वही का वही रहेगा. इसका मतलब कि फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस जो है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. एक ऐसा है कि ये प्लेन बनेगा. ये जो ब्लैक पेन से मैंने ड्रॉ किया है दैट विल बी योर फाई इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस. ठीक है, फाई का वैल्यू तब तक फिक्स रहेगा जब तक कि आप इस पॉइंट P को इस सरफेस पे ऊपर नीचे करें या फिर अंदर बाहर की ओर करें. इट इज बेसिकली अ सेमी इनफाइनाइट प्लेन. फाई इक्वल टू कांस्टेंट विल बी अ सेमी इनफाइनाइट प्लेन. क्यों? क्योंकि z एक्सिस एक तरफ इसका एंड है लेकिन दूसरी तरफ ये इंफिनिटी तक भी जा सकता है. ओके, दिस विल बी योर फाई इक्वल टू कांस्टेंट का सरफेस.
जब तक आप इस प्लेन को रोटेट नहीं करेंगे along z एक्सिस आपका फाई चेंज नहीं होगा. ठीक है. सो अल्टीमेटली यू कैन से दैट योर rho equal to constant is a cylindrical surface with the z axis as its axis. Your z equal to constant will be an infinite plane क्योंकि वो आगे पीछे दाएं बाएं कहीं तक भी जा सकता है. ठीक है. And your phi equal to constant will be a semi infinite plane क्योंकि एक तरफ z axis उसको बाउंड कर देगा, दूसरी तरफ वो इंफिनिटी तक जा सकता है. So this is constant coordinate surface for spherical coordinates. ठीक. अब आइए लास्ट टॉपिक पे आइए. Let us focus upon spherical coordinates. हम लोगों ने cylindrical कर लिया, अब spherical के ऊपर आइए. Spherical में देखिए आपके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं r, थीटा एंड फाई. आपको ऑलरेडी पता है इन तीनों के बारे में क्या होगा कांस्टेंट सरफेस में. r इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या, आपको पता है r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. तो r इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा स्फीयर हुज रेडियस इज इक्वल टू r. सो r इक्वल टू कांस्टेंट विल बी अ स्फीयर विथ सेंटर एट इट्स origin. r equal to constant will be a sphere with center at its origin. Now, you also know कि जो थीटा एंगल होता है उसको हम लोगों ने डिफाइन करा था एज कोलैटिट्यूड. हम लोगों ने देखा था इस चीज को. देखिए ये रहा आपका थीटा z एक्सिस. अब ये जो स्फीयर है इसकी सरफेस पे जो लैटिट्यूड का डायग्राम बनाते सर्कल का, इन सभी पॉइंट्स पे थीटा सेम रहेगा. लेट अस से 60 डिग्री तो 60 डिग्री, इस वाले सरफेस पे भी 60 डिग्री तो 60 डिग्री. सो थीटा इक्वल टू कांस्टेंट विल बी अ सर्कुलर कोन. थीटा इक्वल टू कांस्टेंट विल बी अ सर्कुलर कोन with the z axis as its axis, with z axis as its axis and origin as its vertex. इस पे क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, लेकिन आपका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव भी तो आप इसको सॉल्व कर सकें. ठीक है. ओके. व्हाट अबाउट फाई इक्वल टू कांस्टेंट. फाई इज सेम एज दैट ऑफ योर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट. तो फाई इक्वल टू कांस्टेंट विल अगेन बी अ सेमी इनफाइनाइट प्लेन. इट विल अगेन बी अ सेमी इनफाइनाइट प्लेन. ठीक है. वो सेमी इनफाइनाइट प्लेन कुछ इस तरह से बाहर की ओर आएगा आपका. तो ये जो ग्रीन वाला है दिस इज योर फाई इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस. ये जो ब्लू वाला दिस इज योर r इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस एंड दिस रेड वाला इज योर थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस. ठीक है. आपको एक और सस्पेंस देता हूं मैं. आपको ये बताना है दैट intersection of theta equal to constant and phi equal to constant surfaces will be like what? Will it be like an arc or a full circle or a line only? जवाब अगले क्लास में. ओके. सो लेट अस एंड टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्लास विल बी मोस्टली अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग. ठीक है. थ्योरी बहुत हो गई, अगर क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे तो थ्योरी बहुत दिन तक याद नहीं रहेगी. ठीक है. आज की क्लास में जो थ्योरीज पढ़ाई है मैंने आपको, नो डाउट बोरिंग है, मुझे ही बहुत बोरिंग लगता है, एंड नो डाउट कि लेंदी भी है, एंड नो डाउट इस पे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, बट नो डाउट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. आपके इमेजिनेशन, आपके सोचने की क्षमता कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे चेक करता है. ठीक है.